नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी में। सो गाइस, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकूं। सो गाइस, लेट्स बिगिन। So guys, in this video, we are going to see column basis. Let's start with our topic from introduction. तो कई कॉलम बेसिस में दो टाइप के बेसिस आते हैं, एक स्लैब बेस होता है और एक गसेट बेस होता है। सो गाइस, इन स्टील स्ट्रक्चर बिल्ट अप कॉलम स्ट्रक्चर और सिंगल सैंक्शन आर डिजाइन्ड एज column and are connected to beams to transfer the load of the entire structure to the ground. This column are connected to ground and they are carrying a compressive, mostly non-electric. This compressive load should be transferred to the ground in such a way that the load is distributed so that distribution is evenly and therefore columns are provided with bases. In normal structure other than steel structure, we use term footing, but in steel column the terminology that is used is column base. So guys, concept of floor system, force flow diagram. In the floor system, three components are designed. First one is slab. So based on support condition, it is simply supported slab or a continuous slab, and based on loading pattern, it is one way or two way slab. ठीक है, स्लैब में दो टाइप होते हैं, वन वे और टू वे स्लैब। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ द स्लैब बेस। सो गाइस, स्लैब बेस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? फर्स्ट है कॉलम, सेकंड कनेक्टिंग एंगल। ठीक है, एंगल हमें ज्वाइन करना है आई से मिनिमम, या फिर हम लोग 115 इंटू 100 इंटू 50, या फिर 115 इंटू 110 इंटू 50। नेक्स्ट आता है बेस प्लेट, फोर्थ है पीसीसी बेड या फिर उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ब्लॉक। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ द गसेट प्लेट। इसमें कॉलम, बेस प्लेट, गसेट प्लेट मिनिमम 16 mm thick. Sometimes a cover plate is provided in the column that is 16 to 20 mm thick. गसेट प्लेट आएगा 150 into 115 into 15 and concrete block, PCC block. So guys, design of column base include check the bearing pressure of the soil. ठीक है, grade of concrete FCK. The optimum strength of concrete should be between 0.45 into FCK and 0.60 into FCK. So guys, determine the length, width and thickness of the base plate. Find the size of the concrete block required. In slab base, thickness of base plate is directly calculated using a formula. In gusset plate, thickness of base plate is calculated are as follows. First, identify the critical section and find BM at that critical section. Find moment about y-y axis of the base plate. Third one is using plastic modulus, that is ZP, and comparing with it the combined moment, we get two values of thickness. Select the maximum value. So guys, let's see design of slab base. डिजाइन ऑफ स्लैब बेस। तो गाइस, ये जो आपको दिख रहा है ये स्लैब बेस है। यहाँ पे जो ए बी, जो कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी है वो है प्रोजेक्शंस है। कैपिटल एल जो आपको दिख रहा है वो है लेंथ ऑफ द बेस प्लेट। कैपिटल बी जो आपको दिख रहा है वो है विड्थ ऑफ द बेस प्लेट। सो गाइस, ये एक पीसीसी है। यहाँ पे जनरली M10 M15 यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रेशन आने वाला है। ठीक है, ये जो एंगल आप नीचे वाला डायग्राम देखिए, एक बेस प्लेट लगा है, उसके ऊपर एंगल हमें अटैच किया है, वो है आई से 115 इंटू 110 इंटू 15, और ये जो हमें कॉलम अटैच किया है इसको। ठीक है, so guys, let's see one numerical on this. A column ISHB 350 carries a factored load of 1200 kilonewton. Design suitable slab base considering following assumption. Assume base concrete M10, self-bearing capacity of the soil SBC of soil is 350 kilonewton per mm meter square.
and grade of this structural steel is 410. तो गाइस ये जो न्यूमेरिकल है जनरली 16 मार्क्स में यूनिट 16 मार्क्स का यूनिवर्सिटी पेपर में देखा जाता है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सो लेट्स राइट ऑल द गिवन थिंग्स फ्रॉम द क्वेश्चन. कॉलम दिया हमें ISHB 350, PU दिया है 1200 किलो न्यूटन. इसको न्यूटन में करेंगे 1200 इंटू 10⁻³ न्यूटन. SBC दिया है 350 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. PCC दिया है M10. सो FCK हुआ 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर. कॉलम इज ISHB 350. so depth is 350 mm, width is 250 mm. सो गाइस ये विथ हमें कहाँ से मिला? ये हमें मिलता है स्टील टेबल से. गाइस आप स्टील टेबल रेफर करो. ये ISHB 350 में आपको डेप्थ के और विथ आपको दोनों वहां पे मिल जाएगा. सो गाइस वी मस्ट हैव लेंथ एटलीस्ट 350 प्लस 2A एंड विथ 250 प्लस 2B. ठीक है गाइस. व्हाट इज A एंड B? A and B आर दी प्रोजेक्शंस. ये आपको डायग्राम में समझ में आ रहा होगा. सो अज्यूम A इक्वल टू B. तो LP इक्वल टू 350 प्लस 2A, BP इक्वल टू 250 प्लस 2A. एक्सटर्नल लोड फैक्टराइज्ड एक्सियल लोड इक्वल टू 1200 किलो न्यूटन. एरिया रिक्वायर्ड फॉर द बेस प्लेट इक्वल टू A इक्वल टू PU अपॉन 0.45 इंटू FCK. और यहाँ पे गाइस 0.45 इंटू FCK भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर 0.6 इंटू FCK भी कर सकते हैं. तो गाइस एरिया इक्वल टू 1200 इंटू 10⁻³ अपॉन हमने यहाँ पे 0.45 इंटू 10 लिखा है. ठीक है गाइस. FCK 10 है तो एरिया की वैल्यू आती है 270 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर. सो गाइस आइए हम लोग ये सॉल्व करेंगे. 270 इंटू 10⁻³ इक्वल टू LP इंटू BP. ठीक है. फिर यहाँ पे LP और BP की जो वैल्यू हमने पिछले पेज में लिखी थी जो है LP की 350 प्लस 2A और BP की 250 प्लस 2A यहाँ पे पुट करेंगे तो जनरल डायरेक्टली हमें A की वैल्यू आ जाएगी 111 mm. गाइस ये A की वैल्यू हम लोग वैसे ही सेम पुट करेंगे तो ऑल्सो B इक्वल टू 111 mm बिकॉज हमने यहाँ पे कंसिडर किया था कि A इक्वल टू B. तो हमने A इक्वल टू B कंसिडर किया था तो जो A की वैल्यू आई वही B की रहेगी. सब्स्टिट्यूट A एंड B वैल्यू इन इक्वेशन. हम लोग वो इक्वेशन में A और B की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर आता है LP इक्वल टू 572. तो ये जो 572 है गाइस इसको कभी ऐसे मत रखना. हम लोग डायरेक्ट इसको राउंड फिगर लिखते हैं 580 तो काफी ये साइड पे आसान गिरेगा. BP जो हमें आया है 472 हम लोग इसको डायरेक्टली 480 लिखेंगे. सो गाइस AP कैलकुलेट करेंगे 58. सो गाइस AP क्या होगा? एरिया ऑफ प्लेट दैट इज 580 इंटू 480. सो गाइस लेट्स कैलकुलेट थिकनेस ऑफ द प्लेट. अपवर्ड बेरिंग प्रेशर इक्वल टू फैक्टरेड लोड अपॉन एरिया प्रोवाइडेड. सो W इक्वल टू PU अपॉन A प्रोवाइडेड. तो गाइस PU जो हमें दिया था क्वेश्चन में वो है 1200 इंटू 10⁻³ अपॉन 580 इंटू 480. सो गाइस दिस शुड बी मैक्सिमम मतलब दिस शुड बी मिनिमम दिस शुड बी मिनिमम देन 0.45 FCK. ठीक है गाइस. तो हमें इसका आंसर आ रहा है 4.36 4.31. so this is minimum of 4.5 so this is safe. So therefore W equal to 4.31. okay. तो गाइस नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ द प्लेट कैलकुलेट करना है. स्मॉल t इक्वल टू अंडर रूट 2.5 इंटू W ब्रैकेट A स्क्वायर माइनस 0.3 B स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज गैमा M0 अपॉन F5. गाइस यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करेंगे. ये t इक्वल टू 20.31 mm आता है दैट इज ग्रेटर ऑफ TF. दिस वैल्यू शुड बी मोर देन थिकनेस ऑफ द फ्लेंज. गाइस जो TF होता है वो है थिकनेस ऑफ द फ्लेंज. सो गाइस ये TF से ज्यादा है सो देयरफॉर T इक्वल टू 20.31 mm इज ओके. तो गाइस यहाँ तक अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको 16 में से 8 मार्क्स मिल जाएंगे. तो गाइस नेक्स्ट पार्ट इसको न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं दैट इज डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट ब्लॉक पेडिस्ट्रियल. एरिया ऑफ कॉन्क्रीट ब्लॉक. तो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट ब्लॉक इक्वल टू
PU इंटू 1.1 अपॉन SBC इंटू 1.5। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो SBC की वैल्यू है हमेशा किलो न्यूटन में होनी चाहिए। PU एंड SBC शुड बी इन किलो न्यूटन। ठीक है, सो 1200 इंटू 1.1 अपॉन 350 इंटू 1.5। तो गाइस हमें वैल्यू आई 2.51 इंटू 10⁶ mm²। तो गाइस यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखता होगा कि LC और BC हमने नोट किया है, A और B। तो गाइस यहाँ पे हमने कुछ नेमिंग दिया है, दैट इज A1 B1। ठीक है, तो यहाँ पे LC हम लोग डायग्राम को देख के एक इक्वेशन बनाते हैं, LC इक्वल टू LP प्लस 2A1 और BC इक्वल टू BP प्लस 2B1। तो गाइस सेम हमने जो पहले किया था कि A1 A इक्वल टू B, तो यह यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, A1 इक्वल टू B1। सो गाइस AC इक्वल टू सेम उसी की तरह हमें सॉल्व करना है और A1 और B1 की वैल्यू निकालनी है। तो AC इक्वल टू सेम LC इंटू BC। तो गाइस AC की वैल्यू वहां पे लिखनी है, LC इज व्हाट 580 इंटू 2A1। तो गाइस यहाँ पे A1 की डायरेक्टली वैल्यू आपको मतलब कैलसी में अगर आप शिफ्ट सॉल्व करेंगे तो 527.54 mm आएगा। और हमने जैसे कि A1 इक्वल टू B1 अज्यूम किया था, तो B1 की भी वैल्यू 527.24 mm आ जाएगी। नोट द कॉलम by using base plate ISA 115 into 110 into 15 mm। तो गाइस यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। यहाँ तक अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा 16 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है गाइस, आपको होप ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा कॉलम बेस। तो गाइस प्लीज to like this video, please like, subscribe and share our video.